Hello, my dear children. This is your computer teacher. In computers, today we will start chapter 3, that is managing files and folders. So, let's get started. So, let's start with Windows Explorer. What is Windows Explorer? Windows Explorer is an application that provides detailed information about files, folders and drives. It offers you to manage and organize your files and folders. आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं आप उन सबको देख सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं, नया फाइल फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, कॉपी, मूव, रीनेम, ये सब आप अपने कंप्यूटर के सारे फाइल्स फोल्डर के साथ कर सकते हैं यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर. इसको कैसे ओपन करते हैं? वी हैव टू click on the start button, okay, then all programs, and here click on the accessories, and in accessories you will find the option of Windows Explorer. Click on Windows Explorer and you will see all kinds of computer files and folders you will see in this window. You can click on the start button and then computer option also, then also you will see all your computer files and folders will be displayed in this Windows Explorer window. You can use and open them, okay. So children, let us see how to create a folder on the desktop. हमें यहाँ desktop पे एक folder बनाना है. Then how to do that? We have to just right click and then you can see there is a shortcut menu. Here you have to choose new and then folder. Okay. When we will click on folder, we will see the new folder is created. Now you can see here we can see the cursor and we can write the name of the new folder using the keyboard. We will write the name and press enter. You can see this way I have created a folder with my name. Okay, this way we can create a folder and we can keep all the files in the folder using just drag and drop. हमें जो भी फाइल इस फोल्डर के अंदर डालनी है हम उसको ड्रैग करेंगे, मीन्स लेफ्ट वाले बटन को दबा के रखेंगे माउस के एंड देन माउस को यहाँ तक लेके जाएंगे एंड यहाँ पे छोड़ देंगे. So we have dragged the file and dropped in the folder. You can see file is copied inside the folder. So this way we can create the folder and we can keep our files inside our folder. Okay. Now the next thing is how to move or copy a file from one drive to another. Suppose we have a file in D drive, that is readme file is here in D drive, and we want this same file copy in E drive. ठीक है, हमारे पास यहाँ D ड्राइव में एक फाइल पड़ी हुई है रीडमी, हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके हमें इसको कहीं और ले जाना है, सपोज सी ड्राइव में ले जाना है या ई ड्राइव में ले जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे? वी हैव टू ओपन द डी ड्राइव, देन सिलेक्ट दिस फाइल, इस फाइल पे नॉर्मल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, देन फ्रॉम हेयर यू कैन click on organize and here you have seen the option of copy. Okay, you can copy it using here और you can right click and click on copy. ठीक है, कॉपी करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे या यहाँ से ऑर्गेनाइज पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, या थर्ड वे है आप कीबोर्ड पे CTRL एंड C प्रेस कर दीजिए तो भी ये कॉपी हो गई. अब ये फाइल कॉपी हो गई, अब आप इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं आप पहले वहाँ जाएंगे, जैसे हमें C ड्राइव में लाना है इस फाइल को तो हम C ड्राइव में आएंगे, देन यहाँ लाके हमें उस फाइल को पेस्ट करना है. ओके, सो वी विल क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज एंड यू कैन सी देयर इज ऑप्शन ऑफ पेस्ट. आप चाहे तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं या नॉर्मल राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज ऑप्शन ऑफ पेस्ट. ओके, क्लिक ऑन पेस्ट. ठीक है, इट इज आस्किंग दैट यू हैव एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, यस, कंटिन्यू कर दीजिए. यू कैन सी फाइल हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई, यहाँ पे आ गई. ओके, या आप कंट्रोल के साथ V करेंगे, CTRL के साथ V प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तब भी हमारी फाइल पेस्ट हो जाएगी. So this way we can create the copies of file. हमारे पास कोई भी फाइल है हम उसकी कॉपीज इस तरह से बना सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मूविंग द फाइल. अभी तो हमने इस फाइल की कॉपी बनाई, हमने इस फाइल को यहाँ भी एक फाइल थी रीडमी और सेम यही फाइल की कॉपी हमारे पास यहाँ भी आ गई. अब सपोज करो हमें इस फाइल को मूव करना है, मूव मीन्स यहाँ से इस फाइल को हटाना है एंड हमें इसे कहीं और ले जाके रखना है. ठीक है, वी वांट टू मूव द फाइल, वी हैव टू कट इट फ्रॉम हेयर एंड देन पेस्ट इट एनीवेयर एल्स. हमें यहाँ से इसको कट करना होगा और फिर जहाँ पे हमें इसको ले जाना है वहाँ जाके हम इसको पेस्ट करेंगे. कैसे करेंगे? वी हैव टू राइट क्लिक दिस कट. ओके, राइट क्लिक करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, या आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज में जाके यहाँ से कट कर दीजिए.
या कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में आप एक्स दबाएंगे तब भी ये कट हो जाएगी। यहाँ से कट हो गई मीन्स कट के बाद आप जहाँ जाके इसको पेस्ट करेंगे ये इसकी कॉपी वहां पहुंच जाएगी और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। ओके, ये मूव हो जाएगी यहाँ से रिमूव होके कहीं और जाके इसकी कॉपी सेट बन जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको कट किया। देन हम सपोज डेस्कटॉप पे लाना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप पे आए, राइट क्लिक एंड पेस्ट। ठीक है, हमारी फाइल वहां से हट गई और यहाँ आ गई, मूव हो गई फाइल। यू कैन सी वहां नहीं है इसकी कॉपी, डी ड्राइव में थी, देख लीजिए डी ड्राइव में से ये रिमूव हो गई और हमारी डेस्कटॉप पे आ गई। सो दिस वे वी कैन मूव एनी फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, इन द सेम वे हम पेन ड्राइव से भी फाइल्स एंड फोल्डर्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो ये कंप्यूटर फोल्डर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज। पेन ड्राइव लगाएंगे या सीडी लगाएंगे तो वो यहाँ पे आपका एक फोल्डर बन के आएगा। जैसे हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं तो हमारे पास एक रिमूवेबल डिवाइस जी बन के आता है। ओके, तो वो पेन ड्राइव है। आप अपनी कंप्यूटर की कॉपी फाइल्स की कॉपीज उसके अंदर डाल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, या आपको कंप्यूटर में से हटाना है तो कट पेस्ट करके आप पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। सेम वे है। ओके, जहां भी आपको फाइल ले जानी है आप वहां पे सेम कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट मेथड यूज करेंगे। ओके, नाउ सी हाउ टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। हमें कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है तो कैसे करते हैं? वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे डिलीट की होती है, आप उसको प्रेस कर दीजिए, या यहीं पे राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस डिलीट एंड इट इज आस्किंग आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकल बिन। ये पूछ रहा है कि आपको डिलीट करनी है, ये रिसाइकल बिन में चली जाएगी, डस्टबिन में चली जाएगी कंप्यूटर के। यस, ठीक है, तो ये हमारी डिलीट हो गई। ठीक है, जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हम कंप्यूटर में से डिलीट करते हैं वो हमारे कंप्यूटर के डस्टबिन के अंदर चली जाती हैं। एंड कंप्यूटर का डस्टबिन कौन होता है? हमारा रिसाइकल बिन। ये हमारा रिसाइकल बिन है। जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हम डिलीट करी थी, अभी हमने ये वाली फाइल डिलीट की थी, ये हमारी कहाँ आई? रिसाइकल बिन में। हम चाहें तो इसको यहाँ से दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं या फिर इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ओके, वी हैव टू ओपन द रिसाइकल बिन and if we want to store it back we have to click it and then restore this item। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी वापस से रीस्टोर हो गई, वापस से यहीं पे आ गई। ठीक है, अगर हम फिर से डिलीट करते हैं, ठीक है, तो फिर से हमारी रिसाइकल बिन में ये फाइल आ जाएगी और हमें परमानेंट डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर देंगे, तो ये हमारी परमानेंटली फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये फाइल कहीं भी नहीं है हमारे कंप्यूटर में, ये डिलीट हो चुकी है, ये दोबारा से नहीं आएगी। सो दिस वे वी कैन डिलीट द फाइल्स एंड दिस वे वी कैन रीस्टोर द फाइल्स बैक फ्रॉम द रिसाइकल बिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सर्च अ फाइल और फोल्डर। हमें कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करते हैं? वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड हियर यू कैन सी दिस इज द सर्च बॉक्स। यहाँ सर्च बॉक्स में हम उस फाइल या फोल्डर का नेम टाइप करते हैं जो हमें सर्च करनी है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ रीड मी। सो रीड मी नाम से जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे वो सारी हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। सो दिस वे वी कैन सर्च एनी फाइल और फोल्डर इन आवर कंप्यूटर। अगर हमने कोई फाइल कंप्यूटर में बनाई, हम उसको भूल गए हमने कहाँ स्टोर की थी, सो फ्रॉम दिस सर्च बॉक्स वी कैन सर्च द फाइल। एक तरीका और है यूजिंग द वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको यूज करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक होता है हमारा स्टार, दिस एस्ट्रिक साइन, स्टार। आप जहां भी एस्ट्रिक साइन लगाते हैं, दिस स्टार, दिस इज यूज टू शो दैट ऑल द फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारे दिखाता है। जैसे हमने लिखा स्टार डॉट docx मीन्स जितनी भी फाइल जिनका एक्सटेंशन .docx है, जितनी भी फाइल के नेम के आगे .docx लगा है वो सारी फाइल यहाँ पे हमें ये शो करेगी। ओके, तो स्टार मीन्स ऑल द फाइल्स। स्टार आप जहां लगाएंगे वहां वो ऑल द फाइल्स दिखाएगा। आपने स्टार डॉट स्टार लगाया तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सो यूजिंग दिस एस्ट्रिक साइन वी कैन सर्च एनी फाइल और फोल्डर। एंड सेकेंडली वी कैन यूज दिस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारा वहां पे यूज होता है जहां पे हमें फाइल का नेम तो मालूम है बट फाइल के नेम का हम एक सिंगल लेटर भूल गए हैं। जैसे मुझे PAR याद है बट क्वेश्चन मार्क लगा के मैं एक लेटर भूल गई हूँ, .jpg, ये फाइल मुझे ढूंढनी है। सपोज मैं मुझे फाइल का नेम याद है PAR करके था तो मैंने PAR लिखा है, इसके आगे एक लेटर में भूल गई आई वाला, और .png मुझे याद है तो मैं PAR क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने क्योंकि मुझे आई याद नहीं था, फिर मैंने .png लिखा।
तो ये उस फाइल को ढूंढेगा जिसमें PAR है, उसके बाद एक कोई और लेटर लिखा हुआ है, चाहे वो आई हो या कोई भी लेटर हो सकता है। तो ऐसी जितनी भी फाइल्स जिसमें PAR स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में उनका जो फॉर्मेट है वो .png है, तो वो सबको ढूंढ देगा। या मुझे अगर फॉर्मेट भी नहीं मालूम है तो PAR क्वेश्चन मार्क डॉट करके मैं यहाँ पे स्टार भी लगा सकती हूँ। तो जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर हैं जो PAR से स्टार्ट हुई है, जिनका नाम PAR करके है, वो सारी फाइल्स मेरे सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, so this way we can search a file using wildcard characters. Now let us see how to sort the file. ये सारी फाइल्स हैं, इनको हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, सॉर्ट करना है, ठीक है, इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है। देन हाउ टू डू दैट, we have to right click and click on sort by. Sort by के अंदर यहाँ पे you will see the option of name, means name के अकॉर्डिंग ये सारी फाइल्स हमारी सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। यू कैन सी ये अभी हमारी A to Z के फॉर्म में सॉर्ट हुई हुई थी, अब ये Z to A की फॉर्म में सॉर्ट हो गई है। हम चाहें तो यहाँ से सॉर्ट बाय अगेन करेंगे तो ये A to Z के फॉर्मेट में सॉर्ट हो गई, ठीक है। मीन्स जो फाइल्स के नेम्स आ रहे हैं, तो जो A जिनमें पहले वो पहले आएगा, पहले आएगी वो फाइल, जो B से स्टार्ट हो रही है वो उसके बाद आएंगी, जो C है उसके बाद फिर वो C आया, फिर R आया। तो इस तरह से हमारी ये फाइल्स A to Z के फॉर्म में सॉर्ट हो गई। ओके, आप चाहें तो साइज के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं और फाइल टाइप के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू वर्क विद मल्टीपल विंडोज। हमारे पास अगर बहुत सारी विंडोज से हमें एक साथ वर्क करना है तो कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक MS वर्ड की हमने फाइल खोली है, एक मैंने MS वर्ड खोल लिया, मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, और एक मैंने यहाँ पे पेंट खोला, ठीक है। मेरे पास ये दो फाइल्स हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं दोनों फाइल्स को एक साथ देखूँ साइड बाय साइड। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को ओपन करना होगा एंड देन राइट क्लिक करके, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यू विल सी देयर इज ऑप्शन ऑफ शो विंडो साइड बाय साइड। क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी पेंट विंडो एंड MS वर्ड की दोनों विंडो मेरे पास साइड बाय साइड डिस्प्ले हो गई। सो दिस वे वी कैन ओपन टू विंडोज साइड बाय साइड। So children, I hope this session was helpful for you. Thank you so much. Bye bye.